Hello class 10. Today we'll study chapter 4 of English from book The First Flight. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. In this picture you can see the original diary of Anne Frank. इस पिक्चर में आप एन फ्रैंक की डायरी देख रहे हैं. ये बहुत ही एक पुरानी डायरी है जो कि एन फ्रैंक ने लिखी थी और इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है. इसे क्यों जाना जाता है अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे. 1942 की है जब नाजीज पावर में आए और हिटलर का कब्जा हो गया और जो जितने भी नाजीज थे उन्होंने जूस के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया. इन पिक्चर्स में देखो आप देख सकते हो द वे दे वर ट्रीटिंग जूस. यहाँ पे जितने भी ये बंदी हैं ये सब जूस हैं और जो ये वॉर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सीन है. वॉर लाइक सिचुएशन थी. उसी समय की बात है एन फ्रैंक को एक डायरी गिफ्ट की गई और एन फ्रैंक ने उस समय 12 जून 1942 में उसको डायरी गिफ्ट की गई तो उसकी फैमिली को अपने आप को बचाने के लिए नाजीज से छुपना पड़ा और वो सारी एंट्रीज जो उसने डायरी में करी वो उस समय की है जब उन्होंने छुप के अपनी लाइफ स्पेंड की. So let's read the diary of young girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicle chronicle the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. 2 साल की ये पूरी एंट्री है इस डायरी में 42 से 44 तक. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book. ये डच में लिखी गई लेकिन इसे पूरी दुनिया में लोगों ने पढ़ा because it was translated. इसको ट्रांसलेट किया गया अलग अलग लैंग्वेजेस में. Now let's try to know why Anne started writing diary. Writing in diary is really a strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of 13-year-old schoolgirl. एन फ्रैंक का ये मानना था कि कोई भी मेरी म्यूजिंग्स मीन्स मेरे थॉट्स में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो इसलिए मैं डायरी लिख के अपने थॉट्स को शेयर कर लूँ. ओ वेल इट डजंट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट to all kinds of things off my chest. Paper has more patience than people. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है. एन फ्रैंक बोलती थी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर में ज्यादा सहनशीलता होती है इंसानों से इसलिए मैं पेपर पे ही अपने सारे थॉट्स लिख देती हूँ. I thought of the saying on one of those days when I was feeling a little depressed. एक दिन एन बहुत डिप्रेस थी and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or to go out. उस दिन वो सोच रही थी वो घर में रहे या बाहर जाए. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. और मैं घर में सोचती हुई अपने दोनों हाथों के बीच में अपने चिन को रख के सोच रही थी और फिर मैंने सोचा कि सच में पेपर में बहुत पेशेंस होती है. So in this picture you can see Anne Frank. She is lying on her bed and writing her diary. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एन फ्रैंक को. She is writing a diary. Now let's know about family of Anne Frank. This didn't mean that she was lonely. Rather, Anne Frank had a loving family and 30 people she could call friends. वो बिल्कुल अकेली नहीं थी, बिल्कुल लोनली नहीं थी. उसकी एक सिस्टर थी, मम्मी पापा थे और कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव से कुल मिला के लगभग 30 लोग थे. Anne Frank and her family. Anne Frank ने अपनी फैमिली के बारे में बताया है. Since no one will believe that a 13-year-old is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents, 16-year-old sisters, and there are about 30 people I can call friends. I had a family, loving aunts, and good home. No one on the surface. I seem to have everything except one true friend. बहुत से लोग थे उसकी फैमिली में, लेकिन उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था. बहुत सारे फैमिली में आंट्स थे और एक अच्छा घर था लेकिन शी वॉज लुकिंग फॉर ट्रू फ्रेंड.
Anne Frank tells about her father and says that my father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36. जब मेरे father 36 के हो गए तब उन्होंने शादी करी और मेरी mother she was 25 की थी. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born in 12 June 1929. I lived in Frankfurt. हमारा जन्म दोनों का फ्रैंकफर्ट में हुआ दोनों बहनों का और I was 4. My father immigrated to Holland. उसके बाद मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए, मेरे फादर हॉलैंड चले गए. My mother Edith Hollander Frank went with him to हॉलैंड और उसके बाद मदर भी जो थी वो फादर के साथ हॉलैंड चली गई. इन सितंबर while Margaret and I were sent to HN to stay with our grandmother. और इस समय हम अपनी दादी के साथ रहे. Now, in her diary, Anne Frank also tells us about her grandmother. अपनी granny के बारे में भी वो बताती है, grandmother के बारे में, कि in 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration. Grandma died in 1942. कि मेरी grandma 1942 में मर गई. No one knows how often I think of her and still love her. और वो बताती है कि वो बहुत अपनी ग्रैनी को प्यार करती थी. इसीलिए the birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. और जब मैंने अपना बर्थडे मनाया था तो मैंने अपनी ग्रैंडमा के लिए एक कैंडल साथ में जलाई थी. In the summer 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. और जब 1941 में जब बीमार थी तब भी मैंने अपने बर्थडे में थोड़ा सा ही सेलिब्रेशन किया था. तो ये क्वेश्चन भी आता है बेटा कि how can you say that Anne loved her grandmother? वो अपने दादी को प्यार करती थी, ये आप कैसे कह सकते हैं? Now let's see what Anne tells about her school in her diary. उसकी डायरी में उसने स्कूल के बारे में बताया है. I started right away at Montessori Nursery School. कि वो शुरू में पहले Montessori Nursery School में पढ़ी. I stayed there until I was 6, at which time I started in first form. First form means first class. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupress, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears and as we said a heartbreaking farewell. और जब वो अपने स्कूल छोड़ रही थी तब वो उन्होंने एक हार्ट ब्रेकिंग मतलब बहुत ही दुखद फेयरवेल दी. उसका मन नहीं था अपना स्कूल छोड़ने के लिए लेकिन वो बहुत दुखी थी और उसका वो फेयरवेल दिया गया. एन की डायरी का एक पेज आपके इस लेसन में इंक्लूड किया गया है. एन ने अपनी डायरी का नाम रखा हुआ था किटी. एन लिखती है डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट. सारी क्लास जो थी बहुत शोर मचा रही थी. क्वेकिंग इन इट्स बूट का मतलब कि शोर मचा रही थी. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. कारण ये था कि टीचर आज ये बताने वाले थे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, कौन अपनी सेम क्लास में रहेगा और कौन आगे बढ़ जाएगा. हाफ द क्लासेस मेकिंग बेट्स. सभी बच्चे बेट लगा रहे थे, शर्तें लगा रहे थे. जी एंड आई लाफ्ड आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. सी एन एंड जेक्स ये नाम स्टूडेंट्स के हैं क्लास के जो शर्तें लगा रहे थे. हु हैव staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. सुबह से शाम तक बच्चे एक दूसरे को बोल रहे थे तुम पास होगे तुम नहीं होगे. If you ask me, मुझसे अगर पूछो एन बोलती है there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back. मुझसे पूछो तो बहुत से मेरी क्लास में ऐसे बच्चे थे जिनको उसी क्लास में रहना चाहिए था. बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. पर टीचर्स क्या रिजल्ट देंगे ये कोई भी नहीं बता सकता. Now this is picture of N's classroom. The students are sitting in their class. They are waiting for their result. पर एन अपने लिए बोल रही है कि आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ माई ऑल टीचर्स. मेरा अपने टीचर्स के साथ मेरा काम अच्छा रहता था. मेरे टीचर्स मुझसे खुश रहते थे. देयर आर 9 of them. 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women. मिस्टर कीजिंग
The old fogey who teaches maths was annoyed with me. लेकिन जो मिस्टर कीजिंग थे वो हमेशा मुझसे नाराज रहते थे. For ages, because I talked too much. क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on subject, a chatterbox. जब मैं बहुत बातें करती थी, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे पनिशमेंट दे दी कि essay लिखो, a chatterbox. Chatterbox मतलब जो बहुत बोलता है. What can you write about that? I would worry about that later. I decided to jotted down the title in my notebook and tucked it in my bag. उस समय तो उसने टाइटल नोट किया और उसको अपने बैग में रख लिया कि घर जाके काम करेंगे. Well, she wanted to come up with a convincing argument. वो एक ऐसा argument लिखना चाहती थी इस तरह से कि कुछ दलील देना चाहती थी जिससे कि सर मान जाए कि हाँ मुझे क्लास में बातें करनी चाहिए. As why one should talk rather than write an unnecessarily long essay. I wrote the 3 pages Mr. Keesing has assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज का essay लिखा और Mr. Keesing satisfied थे. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने बोला कि ये तो स्टूडेंट का एक ट्रेड है, एक विशेषता है बातें करना, बोलना, लेकिन मैं फिर भी उसे कंट्रोल करूंगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ हैबिट. मैं इस हैबिट से अपने आप को बिल्कुल खत्म तो मैं ये आदत नहीं कर पाऊंगी. सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि जो मेरी मदर है शी हैड अ हैबिट ऑफ टॉकिंग एज आई डिड इफ नॉट मोर, and that there is not much you can do about inherited traits. और जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. Mr. Keesing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, लेकिन मैं फिर भी आगे लेसन में मैं बातें करती रहती थी. अब जब एन ने क्लास में बातें करना नहीं छोड़ा तो जो उसके मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उन्होंने उसके ऐसे को तो एंजॉय किया, बट ही अगेन असाइंड हर सेकेंड ऐसे. दोबारा एक ऐसे लिखने को बोल दिया उसको और इस बार ऐसे का नाम था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. ही असाइंड हर सेकेंड ऐसे व्हेन शी टॉक टू हर क्लास अगेन. लेकिन एन अभी भी बातें करती रहती थी. तो अब मिस्टर कीजिंग ने फिर उसे एक पनिशमेंट, थर्ड पनिशमेंट और दी. उन्होंने उसको ऐसे लिखने को बोला, थर्ड ऐसे, जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. द एंटायर क्लास लाफ्ड एट द टाइटल. क्वैक 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 बतख की आवाज होती है, तो सारी क्लास हंसने लग गई. एन laughed too, but she was also running out of ideas. एन भी हंस रही थी, लेकिन अब उसके दिमाग में कोई आइडियाज भी नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे लिखूं अब ये ऐसे. It was she decided to come up with something else. अब उसने सोचा ये ऐसे कुछ अलग तरीके से लिखा जाए. So, with the friend's help, she wrote poem about a family of ducks. अब अपने एक फ्रेंड की हेल्प से उसने इस ऐसे को एक पोएम के फॉर्म में लिखा जिसमें उसने फैमिली ऑफ डक्स के बारे में बताया और ये बताया कि जो फादर स्वान था और जो बेबी डकलिंग्स थे उनको उनके फादर स्वान ने बहुत पीटा. क्यों पीटा? और इतना पीटा कि वो बस मरने ही वाले थे क्योंकि वो बहुत बातें करते थे. Since then, Anne could talk in class and wasn't assigned any extra homework. उसके बाद से एन को क्लास में बातें करनी दी गई थोड़ी बहुत और उसके सर भी थोड़े बहुत जोक्स शेयर करते थे बच्चों के साथ. With this, your lesson is complete. और लेसन नंबर 4 अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे सब बच्चे. From the Diary of Anne Frank. Okay, thank you बेटे.